કરતો નમસ્કાર મિત્રો, આજે સીધું ને સટમાં આપણી સાથે અમેરિકાથી શિકાગોથી કર્નલ ધર્મેન્દ્રસિંહ જોડાયા છે. કર્નલ ધર્મેન્દ્રસિંહ ભારતીય લશ્કરમાં યશસ્વી સેવા આપીને નિવૃત્ત થયા છે અને બહુ જ જાણીતા લશ્કરી બાબતોના નિષ્ણાત તરીકે એ વિવિધ ટીવી ચેનલો ઉપર આમ વિશ્લેષણ કરતા હોય છે. અમે આજે એમને શિકાગોથી આપણી સાથે જોડાવા માટે ખૂબ ટૂંકી મુદતમાં જ વિનંતી કરી અને એ આપણી સાથે જોડાયા છે. આપણે વાત ઓપરેશન સિંદૂરની કરવાની છે. પહેલગામ આતંકી હુમલાનો બદલો લેવા માટે ઓપરેશન સિંદૂર આપણા લશ્કરી દળોએ યશસ્વી રીતે પાકિસ્તાનના આતંકી અડ્ડાઓ ઉપર જે રીતે મારો ચલાવ્યો અને ઓપરેશન સફળ થયું એનાથી આપણે ગૌરવાન્વિત છીએ અને ભારતીય લશ્કરી દળોને આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ. સાથે સાથે આ ભારતીય લશ્કરી દળોને છૂટ આપવા બદલ કેન્દ્ર સરકારને પણ આપણે અભિનંદન આપીએ છીએ. ઘણા વખતથી અપેક્ષા હતી કે એ પહેલગામ આતંકી હુમલો જે 22 એપ્રિલે થયો હતો અને 26 કન્યાઓના મહિલાઓના સિંદૂર ભૂસી નાખ્યા હતા આતંકીઓએ, એ આતંકીઓને ઝેર કરવા માટે એમને શરણ આપનાર પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવો એ ખૂબ જરૂરી હતું અને નવ ઠેકાણે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં અને પાકિસ્તાનના પંજાબમાં આ હુમલો થયો છે. આપણે છે ને અટેક કર્યો છે, એર સ્ટ્રાઇક કરી છે અને પાકિસ્તાને પણ કબૂલ્યું છે કે 26 જણાના આમાં મોત થયા છે. મૌલાના મસૂદ અઝહરના પરિવારના મોટા ભાગના સભ્યોના મોત થયા છે. એમના આતંકવાદીઓની એમના જનાજામાં પાકિસ્તાન લશ્કરના અધિકારીઓ જોડાયા છે. એનો અર્થ એ થયો કે પાકિસ્તાનની સરકાર પણ આતંકવાદીઓને શરણ આપે છે અને હવે એ છૂપું નથી. અને પાકિસ્તાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શહેબાઝ શરીફે એ રિટાલિએટ કરવાનો, વળતો હુમલો કરવાની ધમકી પણ આપી છે. પરંતુ દુનિયાભરમાંથી જે મુખ્ય દેશો છે એના વડાઓ જેમ કે અમેરિકાથી એના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને એમના વિદેશ મંત્રી રૂબિયો, એમણે બંને દેશોને સંયમ જાળવીને આ ટેન્શન હળવું કરવાની બાબતમાં પણ આગ્રહ કર્યો છે. ચીને પણ એ જ પ્રકારે ટેન્શન હળવું કરવા માટેનો આગ્રહ કર્યો છે અને ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે હોપ ઇટ એન્ડ્સ વેરી ક્વિકલી. એમના વિદેશ મંત્રીએ રૂબિયોએ એમણે તો બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાત કરી છે અને ચીને પણ આ પ્રકારનો આગ્રહ રાખ્યો છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાગચી એ પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવા માટે આજે ભારતની મુલાકાતે પણ આવી રહ્યા છે. ભારતમાં પણ આજે આ પહેલગામ આતંકી હુમલાનો જે બદલો લીધો છે એને માટે આપણા લશ્કરી દળોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ચોફેરથી અપાઈ રહ્યા છે. આપણા સંરક્ષણ મંત્રી અને વિપક્ષના નેતાઓ રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પણ આ લશ્કરી દળોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે. આજે કોંગ્રેસની ઇમરજન્સી મીટિંગ થઈ, એમાં આવતીકાલે જે સર્વપક્ષી બેઠક જે બોલાવવામાં આવી છે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી, એમાં માનનીય વડાપ્રધાન હાજર રહે એવી અપેક્ષા કરી છે. 24મી એપ્રિલે માનનીય વડાપ્રધાન ઉપસ્થિત રહ્યા નહોતા, પરંતુ આ બેઠકમાં માનનીય વડાપ્રધાન ઉપસ્થિત રહે એવી પણ અપેક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. અસદુદ્દીન ઓવૈસી જે MIMના સાંસદ છે, એમણે તો આજે પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ એવું પણ ટ્વીટ કર્યું છે. અને હવે રશિયા, યુક્રેન, ઇઝરાયલ, ગાઝા એની વચ્ચેના સંઘર્ષને એ હજુ ધીમો પડતો નથી, પરંતુ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ ધીમો પડે એને માટે દુનિયા આખીમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. અને આપણે હવે कर्नल धर्मेंद्र सिंह ने आवकारिए છીએ અને कर्नल साहब आप बताएं कि अब आगे क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान यदि और कुछ नखरे करता है तो हम तो उसके लिए तैयार हैं. हमारे सभी
लश्करी जो पाक है वो तैयार है। तो आपकी राय क्या है, आपका विश्लेषण क्या है? आप अमेरिका में बैठे हैं, आपको दुनिया भर के रिएक्शंस मिलते होंगे। आप अब मैं आपको पूछता हूं, तो आप इसके बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को शामिल किया। आई एम प्रिविलेज्ड टू बी विद यू ऑन दिस सब्जेक्ट एक्चुअली विच इज अ फेवरेट फॉर माइंड। अभी जब से ये कल दोपहर करीब यहाँ यूएस में 2-2:30 बजे होंगे जब ये खबरें आना शुरू हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद में फिर जो यहाँ के ग्लोबल लीडर्स हैं उनके रिएक्शन और उनकी प्रतिक्रिया जिसके साथ से आई है, तो ये दर्शाता है कि जो ग्लोबल लीडरशिप है, हाउ मच दे आर कंसर्न अबाउट रिटेलिएशन बाय इंडिया एंड escalation by India Pakistan of this conflict, which nobody wants at this stage, because India is a major player as far as the international economy is concerned. It affects all and everybody. सर मैं एक गुजारिश करूं, आप हिंदी में बोले तो ज्यादा दर्शकों तक जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। जी जी अच्छा, जी। जो जिस हिसाब से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना रिएक्शन एक्सप्रेस किया इमीडिएटली, इसका मतलब ये दर्शाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कितने क्लोजली मॉनिटर कर रहा है उधर। इट इज ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है कि ये हो गया उधर, ये नहीं हुआ उधर। अभी जो अभी आते हैं कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं और जो बिग पावर्स हैं, उनका रिएक्शन एक्चुअली इट इज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम कोई एक्शन करते हैं उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर रिएक्शन देता है उधर। अदरवाइज तो पाकिस्तान क्या करता है उसके बारे में कोई दूसरी कंट्री उसका नोटिस भी नहीं लेती उधर। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो अपने जो अनप्रिडिक्टेबल महाशय ट्रम्प हैं, उन्होंने बोला है शेम। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया है शेम वो किसके लिए बोला है। उन्होंने पहलगाम अटैक के लिए शेम बोला है, या पाकिस्तान की हरकत के लिए शेम बोला है, या पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट को हार्बर किया हुआ है उसके लिए शेम बोला है उधर। मेरे को पूरा यकीन है उन्होंने इंडिया के लिए ये शेम वर्ड यूज नहीं किया होगा। दूसरा उन्होंने जो उनका जो विदेश मंत्री है, उन्होंने आशा की है कि ये हम होप आशा करते हैं कि ये जो टेंशन है दोनों देशों के बीच में ये एस्केलेट नहीं होगा और दोनों देश आपस में बातचीत करेंगे और समस्या को सुलझाएंगे, जो बिल्कुल ही सदा हुआ स्टेटमेंट है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है उधर। और पाकिस्तान को इसके ऊपर अमल करना चाहिए उधर। उधर एस्केलेट करेगा तो उसको ही नुकसान होगा उधर। ठीक है, हमारा भी कुछ हो सकता है नुकसान हो, लेकिन हमारा इतना बड़ा कंट्री है, वी कैन सस्टेन। बट पाकिस्तान को सस्टेन करना नहीं हो। 10 में से 9 निकालो तो क्या कहते हैं एक ही बचता है, और 10 में से 1 निकालो तो 9 बचेंगे। हमारे साथ में 9 बचने वाले हैं। उसमें आता है अपना यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो। उन्होंने जैसे जो गार्जियन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है उस हिसाब से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने पहले तो काफी डीप कंसर्न, काफी उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि ऐसा होना पड़ा, भारत को ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा उधर। और मिस्टर एंटोनिया ने बोला है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, पूरी तरह से इसको रेस्ट्रेन करो, ज्यादा इसको एस्केलेट नहीं करो, आपस में बातचीत करो, काम खत्म करो उधर। बिकॉज एनी एस्केलेशन एट दिस पॉइंट, जो भी कोई एस्केलेशन होगा इस पॉइंट के ऊपर, वो काफी डेंजरस होगा। इट विल बी अ फ्लैश पॉइंट इन दिस साउथ एशिया, जो कि पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं होगा उधर। तो उनका स्टेटमेंट भी पाकिस्तान को गौर फरमाना चाहिए उधर, उसके ऊपर अपने ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए।
ये आर्मी के जनरलों के बहकावे में आके नहीं करना चाहिए उधर। चाइना चाइना एज इट इज पाकिस्तान के अलाई है उधर। उन्होंने सबसे पहले बताया इट इज रिग्रेटेबल। अच्छा है उन्होंने पहलगाम को रिग्रेटेबल बोला उधर। अच्छा उन्होंने पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट को सपोर्ट किया उसको रिग्रेटेबल बोला उधर। एंड अगेन उन्होंने बोला है कि ये क्या कहते हैं, एस्केलेशन इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है उधर। शांति बनाए रखने की अपील क्यों? क्योंकि अभी उनके जो उनका जो अलाई है पाकिस्तान, उसको मार पड़ रही है, तो इसलिए उन्होंने उसके लिए शांति बनाए रखने की अपील की है। चलो जाते जाते उन्होंने कम से कम पहलगाम को रिग्रेटेबल तो बोल दिया उधर। इसका मतलब ये हुआ सर कि पूरी दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भारत के लगभग लगभग समर्थन में आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करके हमने अपना अधिकार जो था, अधिकार क्षेत्र में जो था, वही काम किया है, यही बात लगभग और सब लोग स्वीकार करते हैं और पाकिस्तान को कंडेम करते हैं इनडायरेक्टली भी। बिल्कुल, जितने भी जो मेजर पावर्स हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कुछ अपना स्थान रखते हैं, उन्होंने सब ने भारत के जो एक्शन उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है उधर। और पाकिस्तान को बोला कि अभी आप चुप बैठिए उधर वहां पे। और अपने जो विदेश मंत्री, उन्होंने जो चाइनीज रन स्टेट रन उनका मीडिया है उसको क्वेश्चन किया है, उनको वार्निंग दिया है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं उधर। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उधर, उससे आप बचें उधर। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने दोनों देशों से अपील की है कि अंगेज इन डायरेक्ट डायलॉग। और ये उम्मीद की है कि दोनों देश रेस्ट्रेंट दिखाएंगे उधर, वहां पे संयम बरतेंगे दोनों देश। इवन यूरोपियन यूनियन, फार अवे यूरोपियन यूनियन, दे हैव आल्सो रिएक्टेड। और उन्होंने बोला कि अभी जरूरत है कि शांति बनाए रखे और इसको डी एस्केलेट करो, इसको बढ़ना नहीं चाहिए उधर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द पीस इन दिस रीजन। Japan has condemned outrightly to Pahalgam incident, expressed solidarity। भारत के साथ पूरी हमदर्दी दिखाई है, पूरा समर्थन दिखाया जापान ने। इतने जो मजबूत शब्दों में किसी कंट्री ने भारत के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई उधर। एंड अगेन उन्होंने बोला कि संयम बरता जाए और इसको एस्केलेट नहीं किया जाए। फिर आती है हमारा यूएई ने भी भारत के पक्ष में ही अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने बोला है संयम बरतें और डी एस्केलेशन की कार्रवाई शुरू हो। अभी जो टेंशन बचा है दोनों देशों के बीच में, उसको कम किया जाए उधर और ग्लोबल पीस को रिस्टोर किया जाए उधर। इससे ये ऐसा नहीं कि जो भारत पाकिस्तान में ये एक्शन हो रहा है इसका दूसरे कंट्रीज पे असर नहीं पड़ता। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे दूसरे कंट्रीज इसके से अफेक्टेड है। एक कंट्री है अजरबैजान, बहुत से लोग तो हिंदुस्तान में उसका नाम भी नहीं जानते। उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। रशिया से अलग हुआ देश, मुस्लिम हाँ देश। हाँ, तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इधर। दूसरा फ्रांस, जर्मन, स्पेन, they have क्या कहते हैं briefed their counterparts and expressed solidarity with India। इसका जो इफेक्ट हुआ है उसका मैं बता रहा था ना कि जो यहाँ पे हुआ एक ऑपरेशन सिंदूर, which is a befitting name given by Indian Army। For salute to them whomsoever selected this name। And Yes. इसका जो प्रेस ब्रीफिंग भी आपको जानकर खुशी होगी कि द लेडी ऑफिसर हेल्स फ्रॉम गुजरात। Yeah, she is MSc from MS University. हाँ हाँ, she She is hails product from of Gujarat। MS University of Baroda. कर्नल सोफिया कुरैशी।
या हाँ, शी हेल्स फ्रॉम गुजरात एंड इसके जो पोस्ट इफेक्ट हुआ है उसमें, इसमें जो ग्लोबल एयरलाइंस जो भी पाकिस्तान के ऊपर से जो क्रिस क्रॉस करती है उधर, उन्होंने सब ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। ऑलमोस्ट 200 फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड। जी ये है एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस, इंडिगो, कटार एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस एयरवेज, एमिरेट्स, या तो सस्पेंड कर दी या इनको होल्ड पे रख दी या रीरूटेड कर दिया। तो अगर सस्पेंड किया तो कितना नुकसान होगा इकोनॉमी के लिए, उनका नहीं है, बाकी जो दूसरे लोगों ने इनसे ट्रेवल प्लान बना रखे हैं उनका नुकसान होगा। और रीरूटेड किया तो फ्लाइट कॉस्ट विल enhance like anything, which will be again affect the common man whosoever is traveling with that. Then second is airspace between the airport Srinagar, Leh and Karachi has been shut down. तो ये इंडेफिनेट नहीं हो सकता। अगर ये जो कराची का पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफी महत्व रखता है, इस्लामाबाद से ज्यादा उसमें फ्लाइट्स आती हैं उधर, जाती उधर। हमारे लिए ठीक है, श्रीनगर में ज्यादा फ्लाइट्स नहीं आती अदर देन टूरिस्ट, बट पाकिस्तान का जो मेजर जो ये ट्रेड हब है वो कराची है उधर, तो जी पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा देर आए दुरुस्त आए, वो जल्दी ही इसके ऊपर जो वर्ल्ड लीडर उससे अपील कर रहे हैं उधर, और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उधर, वो उस पर अमल करेंगे और संयम बरतेंगे उधर और अपनी गलती मानेंगे उधर, और जो भी उनके जो टेररिस्ट हाइड आउट है उसको डिस्ट्रॉय करने के अंदर वो भारतीय सुरक्षा सेनाओं की मदद करें, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उधर। सर, आप बहुत अच्छी बात बताए, विश्लेषण आपका बहुत अच्छा रहा। मगर मगर जिस प्रकार से पाकिस्तान टेररिस्टों को समर्थन करता रहा है, पाकिस्तान के सहाय से जिस प्रकार से भारत पर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में भी थोड़ा सुधरेगा, या फिर हमें वी विल हैव टू गो फॉर फुल प्लेज वॉर? सुधरने की उम्मीद मेरे को कम लगती है उधर, सुधरने की उम्मीद कम लगती है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है ना वो उसको सुधरने नहीं देती उधर। जी जो सबसे नजदीक जब हम आए थे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के, वो था वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट। बट वो किसने डिरेल किया, किसने डिरेल नहीं किया, ये पब्लिक डोमेन के अंदर है। क्योंकि उस वक्त वाजपेयी वाज कंसिडर्ड द वन एंड ओनली वन लीडर इन इंडिया, देयर आर नो जी मैच टू हिम इन इंडिया। जी जो भी अगर वो डिसीजन लेते उसको पब्लिक उसको सपोर्ट करती। दूसरा था जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ ने जिस हालात में उन्होंने वहां पे वो सत्ता संभाली थी उधर, नवाज शरीफ को हटा के उधर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हटाया उधर। उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने जिस हिसाब से अमेरिका का सपोर्ट हासिल किया था पोस्ट ये 2001 सितंबर 2001 के बाद में, ये पाकिस्तान अमेरिका का बिगेस्ट एलाई बन के उभरा था उधर। अमेरिका इस रीजन में बगैर पाकिस्तान के 1 इंच मूव नहीं कर सकता था। तो पोजीशन ऑफ मुशर्रफ वाज वेरी स्ट्रांग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो इतना मतलब पावरफुल था कि वो किसी को कुछ कन्विंस करता, जो वहाँ के जो पाकिस्तान के नागरिक थे उसको विश्वास करते उधर वहाँ पे। और यही कारण था कि जो हमारे पराक्रम होने के बाद में हमारे 70 साल में इतना बड़ा मोबिलाइज होने के बाद में भी हमने पाकिस्तान के अंदर क्रॉस नहीं किया उधर। जबकि उस वक्त सेनाध्यक्ष जनरल पद्मनाभन जब आए थे उधर फॉरवर्ड ट्रूप्स को एड्रेस करने, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये नॉर्मल मोबिलाइजेशन नहीं है उधर। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ और उनको मैंने ये अवगत करा दिया था कि इस बार भारतीय सेना अंदर जाके ही वापस आएगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ये ग्लोबल
पॉलिटिक्स, अमेरिका का जो 2001 हुआ उसका बदला लेने के लिए, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर रिलाई होना पड़ा, इंडिया को रेस्ट्रेन करना पड़ा। इंडिया ने जी अपनी जो स्थिति थी उसको समझा और उन्होंने रेस्ट्रेन किया, उन्होंने संयम बरता उधर कि इस वक्त जो बड़ा वार है वो है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म ओसामा बिन लादेन के खिलाफ। तो उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त थोड़ा ढील दिया उधर, उसका उन्होंने जो मिस इंटरप्रिटेशन किया वो गलत किया उधर। सर, ओसामा बिन लादेन को पैदा भी किया अमेरिका ने, मारा भी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका डिक्टेटर्स को भी समर्थन करता है, टेररिस्ट को भी समर्थन करता है, शस्त्र भी बेचता है दोनों को। मगर आज के समय में मान लीजिए कि हमें हमारे यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होगा, तो मेरा ये आखिरी सवाल आपको है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी स्थिति निर्माण हो कि युद्ध अनिवार्य हो जाए, तो पाकिस्तान को कैसा जवाब हमारे सशस्त्र दल देंगे? इट विल डिपेंड अपॉन जो हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कैसे रिएक्ट करेंगे उधर, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो आजकल जो दो देशों के बीच में जो वॉर होता है, इट इज नॉट 1-to-1 वॉर। इधर आपको जो आपके मित्र देश हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको सबको ऑन बोर्ड लेना होगा उधर वहां पे। तो जो हमारे ऑलरेडी जो मित्र हैं उधर, हमारे मित्र देश हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा उधर। उसके बाद में कोई एक्शन लेने से पहले बताया जाए कि ये क्यों जरूरी है उधर। जस्ट रिमेम्बर अक्टूबर नवंबर में 1971 में क्या हुआ था उधर। ऐसा कोई वॉर का किसी ने डिमांड भी नहीं किया था, हिंदुस्तान जी से किसी ने डिमांड नहीं किया था वॉर। लेकिन जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और जो अपनी आर्मी थी, बीएसएफ थी, रॉ थी, वो अंदर अंदर तैयारी कर रहे थे उधर। और उन्होंने जब 10 दिन टूर किया, प्राइम मिनिस्टर ने पूरा अवगत कराया कि इससे तो हमारी इकोनॉमी क्या, हमारा देश को खतरा हो रहा है, हमारे देश में एक दूसरा देश बन रहा है उधर। तो जी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उनको सेटिस्फाई किया उधर। फिर लास्ट में आया अमेरिका को, उनको जवाब दिया गया और उनको भी देख लिया गया कि जो होगा देखा जाएगा उधर। और रशिया के साथ में ट्रीटी की गई थी हमारी, याद होगा आपको, 20 साल की ट्रीटी की जी गई थी। जी 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 वो एक तरह से हमारे लिए इंश्योरेंस था उधर। तो जी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कदम बिफोर एंटरिंग इनटू वॉर विद पाकिस्तान। जो हमारे छोटे मोटे कंट्री हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, इनको समझाना पड़ेगा कि उधर ये टाइम है कि क्या कहते हैं, आप शांत रहें, यूनाइट रहें उधर। और अभी जो बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान से है उधर, उससे निमट लें, फिर हमारा जो 1-to-1 होगा हम देखते रहेंगे उसके बाद। सर, आप हमारे साथ जुड़े, शिकागो से समय निकाल के जुड़े, और आपने ये इंटरनेशनल फोरा की बात करी, और जो वास्तविक धरातल पर कुछ बातें जो हुई, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हमारे दर्शकों की ओर से हम आपका आभार दर्शन करते हैं, और आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। મિત્રો, આજે કર્નલ ધર્મેન્દ્રસિંહ એ આપણી સાથે જોડાયા અને એમણે મન મોકળાશથી વાતો કરી. મને લાગે છે કે પરિસ્થિતિ એવી ન નિર્માણ થાય, પાકિસ્તાન પોતે સમજી જાય કે યુદ્ધ એ એના માટે પણ ખતરનાક છે, નહીં તો ભારત સાથે યુદ્ધ, સીધા યુદ્ધમાં તો એ જીતી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી, અને એટલા માટે જ પ્રોક્સી વોરમાં એ આતંકવાદીઓને મોકલાવ્યા કરે છે. મને લાગે છે કે એણે એના આ લક્ષણ એ બંધ કરવા પડશે, અને એ સમજી જાય તો સારું, નહીં તો એનો વિનાશ છે. આજે આટલી વાત. ફરી મળીશું નવા એપિસોડમાં નવા વિષય સાથે. તમને આ એપિસોડ ગમ્યો હશે, અને આ એપિસોડ વિશે આપના પ્રતિભાવોની મને પ્રતીક્ષા છે. અને મિત્રોને દેશમાં અને વિદેશમાં આપ જરૂર જણાવશો કે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ડોક્ટર હરિદેસાઈ સત્યમ એવમ તથ્યમ એ સબસ્ક્રાઇબ કરે. નમસ્કાર. थैंक यू वेरी નમસ્કાર मच, थैंक यू, ધર્મેન્દ્રજી. थैंक यू सो मच।